Hi guys, so we'll be starting with lesson 5, the formation of limited liability partnerships. Now in our firm as well, we have incorporated limited liability partnerships, and I'll be showing you all in this video how of LLP is registered and all the details with respect to LLPs. Now, limited liability partnerships, from the name itself you can make out that it is a partnership with limited liability. Okay, normally the traditional partnership firms that you all have studied or you commonly understand, where two people come together and form a partnership firm, there the liability of the partners is unlimited. That means if anything goes wrong, the personal assets of the partners can also be attached. So therefore it is not very good from the partners point of view where their personal assets can be attached. So they wanted something where you set up a partnership between two people, they or more people, they come together, but their liability stays limited. So let's see what is the meaning limited liability partnerships. So if I say simply, in simple words, it's nothing but a partnership with limited liability. Here the people who come together are called as partners, and when they come together their liabilities will be limited to the amount they put into the business. Now, what is the benefit of a limited liability partnerships? You get dual benefits. The first one we as discussed, which is the most important, that is the liability of the partners is limited till the amount invested into the business. And not only that, it also provides you the flexibility of a partnership firm. So a partnership firm, there is an agreement called as the partnership deed, where the rights, liabilities, duties can be easily varied by the partners. Now let's see what is this limited liability partnership. So it came where some of the features of partnerships have been taken over and some of the features of the company have been taken over. So it is nothing but a hybrid. It's somewhere between partnership and company. So here if we see, एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप के पास में पार्टनर्स होते हैं, डायरेक्टर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. जैसे कंपनी के अंदर हम लोग देखते हैं कि डायरेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं, इन LLP लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप नो डायरेक्टर्स आर रिक्वायर्ड. इंस्टेड जैसे कैसे डिसीजंस लेते हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, डायरेक्टर्स दे रन द कंपनी, वैसे ही रिक्वायरमेंट टू मेक कंप्लायंसेस अंडर द एक्ट is there of something called as designated partners. Okay, these designated partners get a specific identification number called as DIPIN, that's designated partners identification number, which we'll discuss. तो एक LLP के पास में पार्टनरशिप के फीचर्स आते हैं, जिधर एक पार्टनरशिप डीड होता है, यहाँ पे LLP अग्रीमेंट होगा, जिधर पार्टनर्स बताएंगे उनका नाम क्या होगा, जगह किधर होगी, राइट्स और ड्यूटीज़ क्या होगी, जस्ट सिंपल. बट थोड़े फीचर्स ऑफ कंपनीज भी होंगे इसमें. कंपनी के क्या फीचर्स होंगे, हम लोग सब जानते हैं कि कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, जिधर तुम जितना पैसा कंपनी में डालते हो बस उतनी ही तुम्हारी लायबिलिटी होती है. इट इज़ टिल दी अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स. तुम अगर कंपनी, लेट्स से तुमने किंगफिशर एयरलाइन में 10 रुपये डाले, अब वो किंगफिशर एयरलाइन ने लॉस कर दिया, तो तुम्हारा मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, 10 रुपीज़, एंड द मैक्सिमम अमाउंट द कंपनी कैन आस्क यू इज ओनली 10. देन अ कंपनी हैज़ परपेचुअल सक्सेशन, तो ये भी फीचर LLP के पास में होगा. एंड एक कंपनी की रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में होती है, वैसे ही एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप की जो भी फाइलिंग्स होती है वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के साथ में होती है. तो हम देख रहे हैं कि LLP के पास में थोड़े कंपनी के फीचर्स होते हैं, जैसे लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, बॉडी कॉर्पोरेट, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, ये सब कंपनी के फीचर्स आते हैं. और थोड़े पार्टनरशिप के भी फीचर्स आते हैं, जैसे LLP के अंदर पार्टनर्स होंगे, वो लोग के साथ में पार्टनरशिप डीड जैसी एक अग्रीमेंट होगा जिसका नाम होगा LLP अग्रीमेंट. क्लियर? सो दिस इज लाइक अ कॉम्बिनेशन और अ हाइब्रिड ऑफ दीज टू एंटिटीज, समवेयर इन बिटवीन.
So LLPs are governed in India by the Limited Liability Partnership Act 2008. Now if someone comes to you and says that they want to set up a LLP, they want to incorporate, form a LLP. As a professional we do that. So we will see how do you incorporate or form a LLP, and here we'll be seeing practically how you can actually incorporate a LLP. सबसे पहले फॉर्म फिल करना पड़ेगा. अब इस फॉर्म का एक स्पेशल नाम है जिसका नाम है फिलिप. ठीक है, इट इज़ फॉर अ फॉर्म टू फिल फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ LLP. अभी फिलिप का फुल फॉर्म क्या है? तो फिलिप का फुल फॉर्म है फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. ओके, सो दिस इज अ फॉर्म टू इनकॉर्पोरेट अ LLP. अब इस फॉर्म के अंदर ये इंटीग्रेटेड फॉर्म है. इंटीग्रेटेड फॉर्म के अंदर क्या होगा, तुम चाहो तो अपना नाम भी इसके अंदर ही, एक फॉर्म जो फिल करोगे तुम अपना नाम भी रिजर्व कर सकते हो. इनकॉर्पोरेशन का फॉर्म है ये. और तुम डायरेक्टर्स जो हैं, जो तुम्हारे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे टू रन एंड ensure that all the compliances under the of the LLP are complied with, they are called as designated partner. जैसे कंपनी में डायरेक्टर्स होता है वैसे ही LLP के अंदर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे. तो जैसे डायरेक्टर्स के पास में डिन नंबर होता है, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, वैसे ही पार्टनर्स के पास में डिपिन करके डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के पास में डिपिन होगा, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. Or if they already have a DIN, then that will also be fine. They don't need to get a DIPIN. So either of them you can have and you can function. अब इस फॉर्म के अंदर मैक्सिमम 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स ये DIN या DIPIN के लिए अप्लाई कर सकते हैं. अब देखते हैं इनकॉर्पोरेशन करना है. सो वील सी प्रैक्टिकली हाउ यू कैन इनकॉर्पोरेट. जैसे मैंने अभी बात किया था फिलिप फॉर्म के बारे में. लेट्स सी. सो दिस इज वन ऑफ द companies that we had incorporated, LLPs that we have incorporated. सबसे पहले नाम, जो LLP का नाम है, ठीक है, उसके लिए तुम्हें या तो यही फिलिप फॉर्म के अंदर तुम नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या MCA की वेबसाइट पे जा सकते हो. और MCA की वेबसाइट पे रिजर्व्ड यूनिक नेम LLP ये दिख रहा है यहाँ पे. तो इधर जाके भी तुम MCA के पोर्टल पे जाके अप्लाई करके अपना नाम रिजर्व कर सकते हो. तो कभी कभार तुम इनकॉर्पोरेट बाद में करते हो, पहले नाम रिजर्व कर लेते हो. तो जब नाम रिजर्व करते हो तो तुमको एक SRN नंबर जेनरेट होता है, तो यहाँ पे डाल सकते हो तुम. और तुमको ये हम लोग कौन सा फॉर्म देख रहे हैं, फॉर्म फिलिप, फॉर्म फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. तो एक बार तुम यहाँ पे डालोगे तो अपने आप नाम आ जाएगा. एड्रेस मांग रहे, नेचर ऑफ बिजनेस मांगेंगे. तो ये जो LLP था ये इट वॉज इन रियल एस्टेट एक्टिविटीज़, वो सब के बारे में. देन इफ़ यू सी दे आर आस्किंग द डिटेल्स ऑफ द पार्टनर्स एंड द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे, पूरा उसका डिटेल्स वो लोग मांग रहे हैं. देन इफ़ यू सी वन अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, यू कैन इवन आस्क फॉर द पैन. एवरीथिंग विल बी सेंड. और फिर बाद में एक आता है अटैचमेंट्स. नाउ अटैचमेंट्स क्या होते हैं, थोड़े तुम्हें कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं. सो लेट्स सी कौन से डॉक्यूमेंट्स वो लोग मांग रहे हैं. तुम ही सोचो, अगर तुम फॉर्म फिलिप मांगोगे क्या क्या मांगेंगे. द रजिस्टर्ड एड्रेस किधर होगा, सब्सक्राइबर शीट्स इंक्लूडिंग कंसेंट, मतलब कौन कौन लोग इसमें सब्सक्राइब कर रहा है, कितने लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, LLP के पार्टनर्स कौन है, हाउ मच मनी आर दे गेटिंग. सो दे विल गिव दैट अलॉन्ग विद देयर साइन एंड देयर कंसेंट. ओके, सो दे विल गिव. फिर वो लोग ये भी बताएंगे कि अगर उनके पास में ट्रेडमार्क के लिए अप्लाई किया या नहीं. तो ये एक बार तुम फिल करके सेंड कर दोगे वेरिफिकेशन देके, तो तुम्हारा फिर ये पूरा सेंड कर सकते हो. तो इससे तुम्हारा LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. अब मैंने ही एक ऐसा चेकलिस्ट बनाया था. दिस इज़ प्रैक्टिकली कि अगर हम लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं तो क्या क्या हमारे पास में ऑलरेडी होना चाहिए. तो अगर हम लोग ने रिजर्व्ड यूनिक नेम MCA के पोर्टल पे जाके रिजर्व्ड यूनिक नेम किया है और हमारे पास में नाम है, तो हमारे पास में सर्विस रिक्वेस्ट नंबर होगा. फिर कॉमन सेंस से ऑफिस किधर होगी, फ़ोन नंबर, ईमेल ID, बिजनेस क्या होगा LLP का, डेजिग्नेटेड पार्टनर्स कौन होंगे. डेजिग्नेटेड पार्टनर्स जस्ट लाइक डायरेक्टर्स, व्हाट आर डायरेक्टर्स टू अ कंपनी,
designated partners are to a LLP. सो दिस द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के बहुत सारे डिटेल्स मांग रहे हैं, फिर दूसरे पार्टनर्स के डिटेल्स सबमिट करने पड़ेंगे. सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम अप्रूव्ड, मतलब क्या, अगर तुमने इसका नाम रखा, अभी ये जो LLP था इसका नाम था अल सुकूनत, तो इसका मतलब क्या है? सिग्निफिकेंस ऑफ द नेम यू हैव टू एक्सप्लेन वेदर इट इज एब्स्ट्रैक्ट और व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड कीपिंग इट. देन द अमाउंट ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन द पार्टनर्स हैव गॉट. फिर बाद में अटैचमेंट्स देने पड़ेंगे हम लोग को, जैसे हम लोग ने देखा सब्सक्राइबर शीट. सब्सक्राइबर शीट्स क्या होता है कि किस किस ने पैसे सब्सक्राइब किया है, द मेम पार्टनर्स के बेसिकली डिटेल्स, और कितना पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और वो लोग साइन देते हैं. फिर वेदर जो ट्रेडमार्क के लिए वो लोग ने अप्लाई किया है. ओके, देन ऑल दीज डॉक्यूमेंट्स आर देयर, ड्राइविंग लाइसेंस एंड ऑल, ID प्रूफ, रेसिडेंशियल प्रूफ, पैन, ये सब एजुकेशनल डिटेल्स, ये सब तुमको रेडी रखना पड़ेगा. तो देन यू विल बी एबल टू फिल फॉर्म फिलिप. अब देखेंगे यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले डायरेक्ट इनके पास में जो भी फॉर्म्स होंगे तुमको साइन करने के लिए, पार्टनर्स के पास में डेजिग्नेट डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स होना पड़ेगा, सो दैट वेन एवर दे हैव टू फाइल ई फॉर्म्स दे कैन डू दैट. फिलिप फॉर्म भी फिल कर रहे तो ऑब्वियसली DSC होना पड़ेगा, तब जाके तुम ये फॉर्म को साइन कर सकते हो. अब ये होता क्या है डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट? ई फॉर्म्स आर ऑथेंटिकेटेड, साइंड थ्रू डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट. लेट्स सी इन दिस फॉर्म ऑल्सो, इफ यू सी यहाँ पे ऐसा आएगा कि इट इज़ डिजिटली साइंड, यहाँ पे दिख रहा है. तो ये पार्टनर का डिजिटल सिग्नेचर टू बी साइंड बाय द डिजिटल सिग्नेचर, और उसका पूरा सिग्नेचर आ जाएगा. ओके, सो दिस विल हैव टू बी डन. देन एप्लीकेशन फॉर डिन, अगर डिन के लिए अप्लाई करो, या फिर डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर. सो इफ आई एम अ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी एंड ऑलरेडी हैव अ डिन, then I don't need to apply for designated partners DIPIN separately. So I can either have any of them. Then comes incorporation of form के लिए I have to apply, that is your form Philip, and then I have to file the LLP agreement. ठीक है. अब एक बार LLP बना दिया, so obviously ये जो पार्टनरशिप फर्म से थोड़ा हायर लेवल कंप्लायंसेस होता है, इसके लिए some of the people get discouraged to start LLP, क्योंकि इसमें थोड़ी कंपल्सरी कंप्लायंसेस करने पड़ते हैं. लेट्स सी कौन से हैं. मार्क दिस इज इम्पॉर्टेंट. 2 फॉर्म एन्युअली उनको फाइल करना ही है. अगर LLP चालू किया है तो ये फॉर्म तुमको हर साल फिल करना पड़ेगा. कौन से है तुम्हें पता होना चाहिए बाय हार्ट. फॉर्म 11 एंड फॉर्म 8, और कोई भी फॉर्म याद नहीं रखोगे चलेगा. फॉर्म 11 में क्या है, एनुअल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, और फॉर्म 8 के अंदर सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा. एनुअल रिटर्न हमें पता है पूरे डिटेल्स की अबाउट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अफेयर्स ऑफ द LLP, वो सब फाइल करना पड़ेगा. और सॉल्वेंसी सर्टिफिकेट में क्या होगा कि द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स गिवन अ अंडरटेकिंग दैट द फर्म इज सॉल्वेंट एंड विल बी एबल टू पे ऑफ इट्स डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. फिर एक तो ये हो गया हर साल. फिर इसके बाद में थर्ड कंप्लायंस, ऑडिट करवाना पड़ेगा. ऑडिट, बट क्या हर LLP को ऑडिट करवाना ज़रूरी है? आंसर इज नो. ओनली इफ द LLP का टर्नओवर और द कंट्रीब्यूशन इज अबाव अ स्पेसिफिक लिमिट, तभी ही तुम्हें ऑडिट करवाना पड़ेगा ऑफ द अकाउंट्स. तो टर्नओवर अगर इज मोर देन 40 lakhs or contribution is greater than 25 lakhs, then it is mandatory to do an audit. फिर जो इनकम टैक्स के रिटर्न्स रहते हैं, ओके, इनकम टैक्स रिटर्न, इट विल बी इन ITR 5. देन ऑडिट तो करा लिया, यहाँ पे तुम्हारा इनकम टैक्स रिटर्न्स भी, इसका स्पेसिफिक फॉर्म है टू फाइल इज ITR 5. फिर इनकम टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा. इनकम टैक्स ऑडिट क्या है कि जो भी तुमने इनकम टैक्स भरे हैं वो सही है या नहीं, रिफंड्स क्लेम किए वो बराबर है या नहीं. अब ये ऑब्वियसली सबको नहीं कराना पड़ता है. ओनली अगेन इफ योर टर्नओवर
is greater than 100 lakhs or your receipts is greater than 50 lakhs, ठीक है, तो ही तुमको इनकम टैक्स का ऑडिट के तुमने इनकम टैक्स बराबर भरे हो कि नहीं उसकी चेकिंग होगी. नेक्स्ट, कंपनी रिलेटेड प्रोविजन, सर्टिफिकेट बाय कंपनी सेक्रेटरी. नाउ दिस ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलएलपी के लिए. अगर कोई भी एलएलपी का टर्नओवर एक्सीड्स 5 करोड़ और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स 50 lakhs, तो उनको कंपनी सेक्रेटरी के पास से एक सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि उन लोग ने सारे कंप्लायंसेस बराबर किए हैं. सो अगेन 8 and 11, 8 में सॉल्वेंसी, 11 के अंदर एनुअल रिटर्न, ये खत्म. अब लिमिट्स वाले 3 पॉइंट्स हैं, लिमिट्स के 3 पॉइंट्स हैं. सबसे पहले सीएस के रिलेटेड, हम लोग के रिलेटेड, अगर 5 करोड़ या कंट्रीब्यूशन 50 लाख है, ओके, तो सर्टिफिकेशन फ्रॉम सीएस. अगर ऑडिट कब कराना है, 40 लाख या 25 लाख, और लास्ट में इनकम टैक्स ऑडिट. सो लेट्स सी कैसा है ये लिमिट. अगर तुम्हारा टर्नओवर इज मोर देन 5 करोड़ और कंट्रीब्यूशन इज ग्रेटर देन 50 लाख, देन पीसीएस का तुम्हें सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि वेदर पीसीएस विल सर्टिफाई कि तुमने सब कुछ फॉलो किया है या नहीं. अगर तुम्हारा 40 लाख टर्नओवर है या इट एक्सीड्स कंट्रीब्यूशन एक्सीड 25 लाख, तो तुमको ऑडिट कराना पड़ेगा. फिर एक इनकम टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा अगर तुम्हारा ये लिमिट से एक्सीड होगा तो. Now after the annual compliance, we are just breaking it down. I told you 2 important forms. I'm putting it in again because it's very important. I told you all form 11 and form 8. ठीक है, annual compliance LLP को करना ही पड़ेगा. फॉर्म 11 में क्या था, एनुअल रिटर्न फाइल करना है. कब तक फाइल करना है, इट हैज़ टू बी फाइल्ड बाय 30th May every year. And form 8, declaration of solvency, that you are solvent, this has to be filed by 30th October every year. Clear enough? Now let's see, there are specific LLP forms also that you need to know. So we'll see. अब सबसे पहले अगर तुम नेम के लिए अप्लाई कर रहे हो, ठीक है, नेम और चेंज इन नेम, इट विल बी इन फॉर्म 1, ठीक है, फॉर नेम. देन इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट है, तो ये फॉर्म 2 है, जिसमें तुम सब्सक्राइबर्स का भी स्टेटमेंट आ जाएगा, विच इज नाउ बीन, इसको एक्चुअली तुम फिलिप फॉर्म भी बोल सकते हो, अभी फिलिप हो चुका है ये इंस्टेड ऑफ फॉर्म 2. ऑल्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एग्रीमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर फ्यूचर में जाके कोई चेंज इन पार्टनर्स हुआ या कोई भी किस्म का चेंज हो गया इन द LLP agreement, okay, they have changed the terms, conditions, rights, duties, tenure, etc., whatever, so again they will have to fill form 3. अगर कोई भी चेंज इन हुआ इन द पार्टनर्स, ओके, पार्टनर्स एडिशन या रिमूवल हो गया, तब फॉर्म 4 फिल करना पड़ेगा. ओके, तो चेंज इन LLP एग्रीमेंट तो होगा तो फॉर्म 3 तो फिल करेंगे ही, और उसके साथ में फॉर्म 4 भी फिल करना है. कभी व्हेन देयर इज अ चेंज इन द डेजिग्नेशन ऑफ अ डेजिग्नेटेड पार्टनर और पार्टनर. देन चेंज फॉर नोटिस फॉर चेंज ऑफ नेम. देन इज योर notice for change of name is when you want to make a publication in the newspapers, that will be there. Now very important form 8 and form 11 that you need to know by heart, annual return and solvency certificate. Then notice for change in registered office, अगर तुम registered office change कर रहे हो तो form 15 में fill करने का. Now if a person wants to change from conversion of a partnership firm into LLP, तो form 17, or conversion of a private company into a LLP, then they will fill form 18. Okay, so private company can be converted into LLP and vice versa also. Clear? Now let's see from the module and finish it off. Now we've seen that LLP are governed by LLP Act 2008. Definition of LLP, very very important, you need to know this with the section 2
subsection N of Limited Liability Partnership Act 2008 defines what is LLP. ना LLP क्या होता है, कुछ ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया है. वो लोग ने बोला एनी एंटिटी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट विल बी कंसिडर्ड टू बी अ LLP. कॉमन सेंस. देन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ LLP, it will be a body corporate, it is governed by 2008 Partnership Act, so obviously Partnership Act 1932 will not apply. They will have to put the name LLP after it. जैसे प्राइवेट कंपनी लिमिटेड लिखते पब्लिक कंपनी के लिए, वैसे LLP के लिए after the name they will write Al Sukunat LLP. Then this LLP is a result of an agreement between the partners, and that is contained into the LLP agreement, that terms and conditions of that agreement. At least 2 designated partners होना चाहिए in every LLP, out of which one should be a resident of India. तो कम से कम 2 चाहिए. फिर if the central government want, they can investigate into the affairs of any of the LLP. You can convert a firm into LLP and vice versa. जैसे कंपनी वॉलंटरीली वाउंड अप हो सकती है या कंपल्सरी वाउंड अप हो सकती है, सेम फॉर LLP. Either the partners decide to voluntarily wound up, or the tribunal, if they find that LLP is not functioning properly, can compulsorily wound up. The advantages of LLP you can write in headings, you can read it up, you will find it simple. Even the disadvantages. Now procedure for incorporation of LLP. Can you tell me which form do we fill for incorporation of LLP? एक ही फॉर्म है, ठीक है. फिल करोगे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, LLP इनकॉर्पोरेट हो जाएगा. दैट इज योर फॉर्म for incorporation of limited liability partnership, फिलिप फॉर्म. ठीक है. अब तुम चाहो तो फिलिप के अंदर ही नाम के लिए अप्लाई कर सकते हो, या तुम्हें लग रहा है कि यार ये तो फॉर्म बाद में फिल कर रहे हैं, पहले नाम रिजर्व करना है, तो जाके तुम अपना रन के ऊपर जाके वेबसाइट के ऊपर MCA पोर्टल के ऊपर तुम अपना नाम रिजर्व कर सकते हो. ऑल द डेजिग्नेटेड पार्टनर्स विल रिक्वायर अ DSC एंड अ DIN. देन कम्स नेम रेजर्वेशन. 2 वे से कर सकते हो, या तो LLP रन के ऊपर जाके नेम कर लो, या ई फॉर्म के अंदर ही डाल दो एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. अब इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे डाल रहा हो, बट उससे पहले ही मुझे रिजर्व करके रख लेना है, कल उठ के किसने ले लिया अवेलेबल नहीं रहेगा, दैट इज वाई. देन इनकॉर्पोरेट द LLP आफ्टर फिलिंग ऑल द फॉर्म्स एंड द नेसेसरी डिटेल्स, सारे अटैचमेंट्स रहेंगे. नाउ कमिंग टू LLP agreement. You have to section 210 defines what is a LLP agreement. Agreement is between the partners where they mutually decide their rights and duties. They have to compulsorily execute a agreement within 30 days of incorporation. ठीक है. और हम लोग ने देखा था LLP agreement के बारे में भी. Okay. Now how to draft a LLP agreement? Obviously there is, what all details will be there in the LLP agreement. So how to draft, you can read it up. It will be a non-judicial paper or essential clauses. Very simple. You can keep in the headings the name of the LLP, place where the LLP will do the business, the type of business, the capital contribution, how much they are doing, profit sharing ratio कितना होगा, the rights and duties, admission, retirement, death के बारे में होगा तो क्या होगा, expulsion, okay, remuneration, bank accounts, how it will be operated. So all these headings you should read. अगर dispute resolution, अगर dispute हो गया तो they can say that they will refer it to arbitrator. That is they will not go to court and try to keep in a arbitrator to resolve these disputes, a special person. Now alteration of LLP agreement. हम लोग ने देखा था अगर LLP agreement को alter करना है तो फॉर्म 3 के अंदर होगा. जब फॉर्म 3 के अंदर क्या अटैचमेंट दोगे, ओरिजिनल LLP agreement, फिर ऑल्टर्ड agreement और फिर बाद में कोई भी दूसरे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. चेंज इन द डेजिग्नेटेड पार्टनर विल बी इन फॉर्म 4, विल हैव टू बी फाइल्ड अलॉन्ग विद फॉर्म 3. हम लोग ने देखा था अगर कोई भी LLP agreement के अंदर चेंज आ रहा है तो फॉर्म 3, but if the change is due to change in partners, then you have to file form 3 and 4. Change in name, procedure for change in name, you will have to give the same thing, 6 preferences you can give and file an application in form
LLP 5, if you see this. Okay, notice for change in name. Now the next one, checklist for shifting of the registered office, very very important. अब तुम देखो यहाँ पे मेरा ऑफिस है, ओके, और मैं उसको बहुत ही पास में ही शिफ्ट कर रहा हूँ. सोचो फ्रॉम बांद्रा टू अंधेरी इज द ऑफिस इज बीइंग शिफ्टेड, तो ये फर्स्ट कैटेगरी में आएगा. ठीक है, तो द रजिस्टर्ड ऑफिस इज विद इन द सेम स्टेट एंड विद इन द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सेम रजिस्ट्रार. मतलब रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज सेम ही प्लेस में है, तो क्या होगा, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स देना पड़ेगा. चेंज इन रजिस्टर्ड ऑफिस इन फॉर्म 15. पब्लिक नोटिस की ज़रूरत नहीं है, और विद इन 30 days ऑफ रेजोल्यूशन पास्ट हैव टू फिल इट विद द ROC. अब सोचो मैं थोड़ा दूर जा रहा हूँ, आई एम विद इन द सेम स्टेट बट फ्रॉम ज्यूरिसडिक्शन ऑफ वन रजिस्ट्रार टू अनदर. मतलब क्या, आई एम शिफ्टिंग फ्रॉम मुंबई टू पुणे. अब बड़े बड़े स्टेट्स में एक से ज़्यादा रजिस्ट्रार होता है, सो विद इन द स्टेट ओनली आई एम देयर फ्रॉम वन रजिस्ट्रार ज्यूरिसडिक्शन टू अनदर रजिस्ट्रार. सो मुंबई में अलग रजिस्ट्रार है, पुणे में अलग रजिस्ट्रार है. तो व्हेन आई एम शिफ्टिंग आई एम विद इन द सेम स्टेट बट द रजिस्ट्रार्स आर ऑल्सो चेंजिंग. सो देन अगेन क्या कंप्लायंस है, कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो सब में ही है, फॉर्म 15 भी सब में है, पब्लिक नोटिस की भी ज़रूरत नहीं है, और विद इन 30 days आई नीड टू फाइल दैट फॉर्म 15. अब आता है ये सबसे बड़ा, अगर सोचो मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ, महाराष्ट्र से ऑफिस बदल के गुजरात में जा रहे हैं, तो दिस इज़ लाइक अ मेजर चेंज, तो मोर अमाउंट ऑफ कंप्लायंसेस विल बी योर. तो कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स तो है ही, बट एडिशनल कंप्लायंस क्या होगा, कंसेंट ऑफ द सिक्योर्ड क्रेडिटर्स भी लेना पड़ेगा. फॉर्म 15 तो सब में फिल करना ही है, बट इसमें क्या है, एक पब्लिकेशन ऑफ जनरल नोटिस भी करना पड़ेगा, एंड ऑल विल बी विद इन, ये सब था विद इन 30 days ऑफ द रेजोल्यूशन. दिस फाइलिंग विल बी डन विद इन 30 days ऑफ पब्लिकेशन ऑफ द नोटिस. देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू शुड नो, दैट इज द एनुअल कंप्लायंस. एनुअल कंप्लायंस में दो फॉर्म आई टोल्ड यू, तुमको बाय हार्ट आना ही चाहिए. दैट इज योर फॉर्म 11 एंड योर फॉर्म 8. Form 11 is about your annual return. It has to be filled on or before 30th May every year. अगर PCS का कब सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा, if your turnover or your capital contribution exceeds these limits, then filing of statement of accounts, we've seen form 8. अब एक ऑडिट करवाना पड़ेगा, okay, will have to get their accounts audited by a chartered accountant mandatorily. अब कब करना पड़ेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट को, यहाँ पे CA को रख रहे हैं, यहाँ पे CS को रखना पड़ेगा. तो जैसे जैसे तुम्हारा कैपिटल कंट्रीब्यूशन या टर्नओवर इंक्रीज होते जाएगा, कंप्लायंसेस लेवल भी इंक्रीज होते जाएंगे. तो यहाँ पे अगर टर्नओवर और कंट्रीब्यूशन एक्सीड्स द लिमिट, देन यू विल हैव टू गेट इट ऑडिटेड बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. अब उससे भी ज़्यादा अगर लेवल हो गया, अगर तुम्हारा turnover or contribution exceeds these limits, then you have to get a tax audit done under the Income Tax Act. Clear? Now agar you are being audited under this, then you will have to file it electronically only under with a digital signature. Then event based compliances, तो यहाँ पे फॉर्म नंबर्स है जो हम लोग ने देखा था, फॉर्म 4, then form 15 is a change of registered office. Form 5 is for change in name. Form 3 is for change in the LLP agreement. Change in the designated partners, you will have to file Form 3 also and Form 4 also. अब एक draft agreement दिया हुआ है, LLP agreement. So any agreement will be this agreement made on so and so date at so and so place between the name of the partners. And then after the definition, they will define various things. Then they'll give you the various डिटेल टर्म्स एंड कंडीशंस. अब क्या क्या होगा LLP एग्रीमेंट में, नाम क्या होगा, बिजनेस क्या होगा, किधर होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, वेदर इट इज़ अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप और अ पार्टनरशिप एट विल. पर्टिकुलर पार्टनरशिप में टेन्योर दिया हुआ है, और पार्टनरशिप एट विल में क्या रहेगा, वो लोग टेन्योर नहीं दे रहे, बोल रहे जब हमारी मर्जी चाहिए हम उसको बंद कर देंगे. कंट्रीब्यूशन कौन कितना ला रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, नंबर ऑफ
Designated partners. अब designated partners will be responsible for the compliances under the act. Sleeping partners कौन है? Because कितनी बार खाली लोग पैसे डाल के चले आते हैं and then they are not into the day to day functioning. ये sleeping partners क्यों important है? क्योंकि कल उठ के जब liability लगती है तब वो लोग एटलीस्ट बेसिक डिफेंस तो कर सकते हैं कि यार वी वर नॉट इन्वॉल्व इन टू द डे टू डे फंक्शनिंग एंड सो ऑन. ऑडिट एंड ड्राइंग्स एवरीथिंग देव गिवन, यू कैन रीड इट वंस. एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब ज़्यादातर लिखा रहेगा कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स विल बी नीडेड. जनरली देयर वाज अ पर्सन, दे आस्क्ड अ क्वेरी कि हमको ये मिलके एक पार्टनर को निकालना है, क्या करें एलएलपी के अंदर. So I told it will be governed by your LLP agreement. LLP agreement में लिखा था consent of all the partners. Okay, this will be given. In the end, they write in witness whereof the parties have hereby signed on the date mentioned above. In witness whereof मतलब in front of witnesses. So party 1 and party 2, that is the partners will sign and then the witnesses will sign. That is it. And then we are done with the chapter.